Hello, everybody. Welcome to the channel, guys, and thank you so much for joining me. And happy Friday and happy September. We are already in the last quarter of this year. How time flies. Okay, so I think there are lots and lots of questions. So मेरी कोशिश रहेगी फ्राइडे को मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का कुछ छोटा छोटा आंसर्स दे पाऊँ बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग, एवरीबडी वांट्स सम काइंड ऑफ आंसर्स. तो जितना हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूंगी, जितना आंसर्स क्वेश्चंस ले पाऊँ लेने की कोशिश करूंगी. ऑफ कोर्स आई विल कीप इन टू माइंड माई इंस्पिरेशन. अगर मैं गाइडेड फील करती हूँ देन ओनली आई कैन टेक. Just in case I miss out your question, you can always ask another question and just be a little understanding. Of course, I make my guidance for people who resonate with my guidance, okay? Not necessarily you have to agree. If you feel that the guidance is genuine, feel free to watch the guidance, put your time into it. Just in case you feel otherwise, that too is perfectly fine because we have our own vibes, we are people we resonate with, and we have people we don't resonate with, and that is perfectly fine, right? So we can always choose to watch people we vibe with, we feel aligned with. I personally have to read the cards as I am being drawn by my spirit guide, my spirit team to read it, okay? It is not to match what is my guidances are not to match the information that is prevalent out there in the 3D. माने कि जो हमें ऊपरी सतह पे पता होता है उस चीज को मैच करने के लिए मेरा टैरो गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है. आई रियली एक्सपेक्ट माई गाइडेंस, स्पेशली पीपल हु वॉच माई गाइडेंस. आई एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ डेप्थ इन देम, आई एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी इन देम. जस्ट बिकॉज माई टैरो गाइडेंस इज नॉट इक्वल टू वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन doesn't necessarily makes my tarot guidance any better or any worse. It is what it is. You have the freedom, you have the free will to take it or leave it, right? I have been doing tarot guidance for 6-7 years and I think it's going fantastic and I wouldn't want to change anything for anything. So this is what it is, you get it. I will always choose to read my guide, tarot guidance the way it is because I am not into this TV world at all. I am not even aware of these TV jargons. ये prankit क्या है ये सब तो मुझे अभी पता चला है, ज्ञानवर्धन हुआ है. I am not into what is popular, what is not popular. So even if I was aware, it's something else that I'm not aware of what is popular and what is not popular. But even if I was aware, I would never give in to this temptation of matching my tarot guidance, my spirit's guidance, or tweaking my spirit guidance just to match something very popular. If you are expecting something like this, you will be highly disappointed on my channel. So please come on my channel with loads of at least little maturity and little understanding. And tarot is not about making things, seeing things in black and white. Tarot is all about seeing things in understanding things basically. Now I have been into therapy for a long time. People come with all kind of problems, all kind of their shadow, and we work together and I don't judge them for their shadow. So in the same way आपको भी ये black and white में लोगों को देखना छोड़ना चाहिए, स्पेशली जब आप टैरो गाइडेंस के लिए आते हैं, टैरो से किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो इट्स हाई टाइम दैट यू लेट गो ऑल दीज critical mind and try to bring more compassion and understanding into a situation. क्योंकि tarot is not about making things right and wrong. Tarot is all about showing you the energy, and there are different kind of energy. There are different kind of ups and downs that people go through. We all have our light side and we all have our shadow side. Light side is something that gives us the motivation, the strength, the abilities to keep moving forward towards our soul purpose, soul plan. Or shadow side is something that we have to work on. जैसे कि Carl Jung, the psychologist, said that where our fear is, there our work is. तो कोई किसी भी इंसान का अगर shadow आ रहा है तो there is a lot of things that is going behind it. All that person needs is a little compassion and understanding. एंड अगर हम कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग उसके लिए नहीं ला पाते हैं, द लीस्ट वी शुड डू इज नॉट जज द पर्सन. वी शुड ऑल्सो, यहाँ पे 3D में हमें चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की इच्छा होती है.
इस सिचुएशन में जब हम टीवी स्टार्स की रीडिंग कर रहे हैं तो देखती हूँ कि बहुत सारे फैंस उनके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको थोड़ा सा भी फ्री विल नहीं देते हैं कि वो अपने लेसन्स को अपनी क्षमता के अनुसार से डील कर पाए, प्ले कर पाए। बहुत लोगों का आइडिया है कि फहमान शुड बिहेव इन दिस वे, बहुत लोगों का आइडिया है कि सुम्बुल शुड बिहेव इन दिस वे। But Fahman and Sumbul, you and me, we all have our spirit team to guide us in the right direction. They are our best helpers. And even they don't interfere in our life. Then how do you think that we know the best for them? हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारा सबसे अच्छा चाहते हैं और वो भी हमारे फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं. दे अलाउ अस टू बी प्ले आवर गेम द वे वी वॉन्ट टू प्ले, हमारी ही समझदारी के हिसाब से. दे डोंट जज अस फॉर making mistakes. Then why are you trying to mother these people that they should behave in this way, this should behave in this way? World is a stage and everybody is here a mere characters. We are playing our roles. जितना हमें पता है उस हिसाब से हम लोग एक्ट कर रहे हैं. So there is no need to judge. और मेरी tarot readings it is what it is. It is what the cards see. You can always say this is not right, this doesn't feel right and wrong, but there is absolutely, you are free to express your opinions. I will certainly not offer my space for these small talks. Okay, this is a total no. I don't offer, you don't have to make my space low vibrational. So with all that said and done, let's give you a little more update. Sumbul Fahman ki reading, yes, you are requesting a lot. I cannot be doing Sumbul Fahman reading daily, as you can understand. Sumbul Fahman ka 2 reading hai. I understand that Fahman's birthday is coming. Yes, 4th September is his birthday. So a lot of you want to know whether Sumbul will wish him or not. अब यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी बात है. I mean, हम समझ सकते हैं कि सुम्बुल what will really go, what must be going through that girl. एक मन उसका बोल रहा होगा कि चलो let's wish the guy, he has been a good friend, I think I should not get into so much of ego and wish him. एक मन उसका बोलता होगा कि नहीं, he has done something and I will not accept it and I should not wish. यही तो 2 तरह का कश्मकश रहता है ना. एक मन चाहता है आप करो, एक मन चाहता है कि आप मत करिए. और इसी बीच में हमारा लेसन्स होता है हमने कितनी अपने how free we are from our ego and we can take a ego free decisions. वही हमारे lessons हैं, वही हमारी consciousness rise होती है. अगर rise नहीं भी होती है, हम decisions नहीं ले पाते हैं ego free होके, या फिर हम नहीं ले पाते हैं वैसे decisions, तो that is too okay. At least spiritual realm में तो there is no judgment. You will still go through your lessons, you will still learn something, you will be given so much of time to learn. So there is no need for any one of us to judge people. बट ये जजमेंट कहाँ से आता है? ये जजमेंट आपके अटैचमेंट से आ रहा है. टू मच अटैचमेंट टू वन पर्सन. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट यू आर सो अटैच टू वन पर्सन दैट यू थिंक द टैरो रीडर रीडिंग द कार्ड्स फॉर डिफरेंट पीपल आर ऑल्सो बीइंग बायस्ड. एंड टैरो रीडर्स कैन स्पेंड ऑल देयर लाइफ एक्सप्लेनिंग दैट दे आर नॉट बायस्ड, बट you understand what you understand. So there is absolutely no point giving explanations also, but just see the kind of attachment you have. You are so attached to one person कि आपको लगता है कि यहाँ से मेरे the tarot reading is negative. Tarot reading is what it is. You only have to wait and watch and see how the things unfold, and then you can say it was right or wrong. Right? So that is what it is. So watch if you resonate. Otherwise, there is no point wasting your time. Your currency, the most important thing in your life is your time. So put on things that give you value, that gives you value. Absolutely. A lot of money is put into this marketing just to grab your attention. Your attention is so important, but you don't realize how important is your attention, your time. So do keep in mind when you are watching something. I don't watch things I don't like. I don't watch things I'm not resonating with. I don't watch these TV stars. This TV star readings is not something that I chose. This happened to happen.
Just like tarot happened in my life, it came my way and I started doing it and there was no looking back. In the same way, I didn't choose to do these readings on TV stars. There was somebody, I was doing other, personality reads. I used to do that because that is my interest as an applied psychologist, exploring the depths of psychology, the ebbs and the flows and the light and the shadow. It interests me. But a lot of people judge the shadow, the darkness. But where is your, darkness is where your light will come from. You have to go, not just go through the darkness, you have to grow through your darkness. So somebody requested, I was doing all these, I was exploring the relationship dynamics and personality reads. Somebody happened to request on Sumbul Pharma, and I was not even aware of Sumbul at that point in time. And I started doing, and there were more requests, and it in this way, it kind of flew into, this TV stars reading came into my energy field. And universe talks to you by bringing things in your energy field. And even though initially I was like, I don't want to do these readings, I don't even know these TV stars, I have zero interest and zero knowledge about them, and therefore I'm not able to really place the energy exactly as what is unfolding in their real life. If I know, I can easily place the energies. And that is why when I started doing these readings again, I did mention that if I am doing these readings, you need to be a little mature and put in the energies as it is applicable. Just don't pick one thing and you start drilling that and there. When I do details reading, there are 10 aspects that I am throwing light on. One aspect maybe I have not picked up, like in the case of, क्या नाम था उस बंदी का, जिया नाम था ना, maybe Jia was क्या था story, what was the story? Maybe Jia was not interested in this guy Abhishek for her own reason. She was not interested. Maybe Manisha was not the reason why she was not interested in him. She was genuinely not interested. ये reason हो सकता है for her Emperor in Reverse thing. वो चीज़ जो मैंने कंक्लूड की थी, मनीषा वाली जो चीज़ थी, वो उसके पिछले वाले रीडिंग से कंक्लूड हुआ था, जहाँ पे मनीष की एक स्टक एनर्जी आ रही थी, एक कश्मकश वाली एनर्जी आ रही थी, जहाँ पे वो मनीषा को पसंद कर रहा है, बट ही ऑल्सो हैज लॉट ऑफ द्वंद गोइंग ऑन इन हिज माइंड. एंड मे बी मनीषा वॉज प्रोजेक्टिंग दैट what she was getting from Abhishek. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ों को डेप्थ पे समझना पड़ता है, बहुत सारा प्रोजेक्शंस होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ आती है वो हमारी मिरर इमेज होती है. तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट एज सिंपल एज यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट हाउ मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट जजिंग एंड जंप टू कंक्लूजन्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आप भी समझेंगे. सोल की चीज़ें पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, शैडो पढ़ोगे, कार्ल यंग थोड़ा पढ़ लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप भी समझ जाएंगे. तो बेसिकली एक बात समझना ज़रूरी है कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इंटरवोवन है, एंड वी आर ऑल वन कॉन्शियसनेस. तो हर चीज़ हर चीज़ से कनेक्टेड है, और हर एक चीज़ अगर दुनिया में दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है, तो जस्ट इमेजिन व्हाट अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स वी आर डीलिंग विथ. द लीस्ट यू वांट टू डू इज जंप इनटू कंक्लूजन एंड गो रॉन्ग. तो वो चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करिए. And what else I wanted to talk? Okay, so I was talking about क्या? I was talking about Sumbul and Faman. तो Sumbul वही क्या होगा बेसिकली, उसकी जो आप लोग ये जानना चाहते हो कि वो विश करेगी कि नहीं करेगी. बेसिकली tarot is not about knowing yes and no. Tarot is not good for that. Tarot is basically to understand the energies, how is it playing out, and how you can go to the best options. जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या टैरो इज एक्चुअली आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस. आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंट वीडियो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इफ टैरो इज रिटन इन स्टोन. बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्या अगर ये प्रिडिक्शन हो गया तो क्या ऐसे ही होगा. द नंबर वन आंसर दैट यू शुड गेट फॉर दिस इज नो, टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन. अगर इस तरह का सिचुएशन होता, मानिए कि कोई मेरे पास आता है कोई प्रॉब्लम लेके, एक जॉब नहीं मिल रहा है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, और वो मेहनत कर रहा है, ही इज पुटिंग द इंस्पायर्ड एक्शंस, वो वो अपना कर्म कर रहा है.
ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा हुआ है हाथ पैर छोड़ के, वो अपना मेहनत कर रहा है पर उसके पास जॉब नहीं है। वो मेरे पास आता है गाइडेंस करने के लिए। हम क्या फाइंड करते हैं, वैसे अब अगेन उसका गाइडेंस कैन बी मिलियन थिंग्स, मिलियन ऑप्शंस है उसके, किस डायरेक्शन में उसका गाइडेंस जाएगा, इसमें मिलियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेस्ड ऑन हिज ओन कर्मा, बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ पर्पस, बेस्ड ऑन हिज ओन एनर्जी, बेस्ड ऑन हिज ओन एनर्जी बैलेंस, डिवाइन टाइमिंग, उसके सोल लेसन्स, उसके पास के कर्मा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। बेस्ड ऑन दैट उसका गाइडेंस आएगा, बेस्ड ऑन दैट उसका एनर्जी रीड आएगा। मान लेते हैं कि एक सिंपल गाइडेंस आता है फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन कि कोई बंदा है मेहनत कर रहा है पर उसके पास जॉब नहीं है। बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट एनर्जी उसका कार्ड आता है कि यस ही विल गेट अ जॉब, राइट, ये आता है। बहुत सारी चीजें वैसे आ सकती हैं। कोई मेहनत कर रहा है तो गाइडेंस ये भी हो सकता है कि उसे प्लानिंग करनी है, या फिर गाइडेंस ये भी हो सकता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो पर सही कर रहे हो लेकिन आपको अटैचमेंट विथ रिजल्ट्स छोड़ना है। आप मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अपने मेहनत से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो। जैसे कि सुंबुल का गाइडेंस आया था कि वो मेहनत तो बहुत कर रही है बट उसका एक्सपेक्टेशंस भी, अब ऑब्वियसली जब आप मेहनत ज्यादा करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएगा और वहां पे क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी कोएगुलेट हो जाएगी और आपके फ्लो को रोक देगी बेसिकली। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप मेहनत करिए पर डिटैच होके करिए, आप बेसिकली फ्लो में रहिए, ताकि जब फ्लो में आप रहेंगे, आप खाली फोकस नहीं कर रहे हैं अपने रिजल्ट पे, तो क्या होगा कि आप फ्लो करते हुए रिजल्ट्स की तरफ भी पहुंच जाएंगे। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, यू स्टार्ट, आपका थॉट प्रोसेस फोकस हो रहा है तो वहां पे एनर्जी कोएगुलेट करना यानी कि स्टक करना स्टार्ट करेगी और फिर वो फ्लो में नहीं रहेगा। तब आपका एक्शन भी अब फ्लो में नहीं है और आप अपने रिजल्ट्स के पास फ्लो करके नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक ऑप्शन होता है। किसी का गाइडेंस हो सकता है कि यस यू आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन अभी आपको और मेहनत करते जाना है और डिवाइन टाइमिंग में आपकी चीजें होंगी। अब ये डिवाइन टाइमिंग हमें बहुत ही इरिटेट करता है, माने कि इतना मेहनत कर लिया, अब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो कब आएगा। अब इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है या फिर इंटरप्ले होता है हमारे कर्मा का लॉ। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, आप बेसिकली जब आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, यू आर बेसिकली वांटिंग टू मैनिफेस्ट दैट थिंग इन योर लाइफ, राइट। मान लेते हैं कि सिंपल आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इस स्टोन जो है ये क्लियर कॉज, इसको पुश करके यहां पे पहुंचाना चाहते हो। बेसिकली आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और यहां पे आप एनर्जी अपनी लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, पर ये आप मूव नहीं कर पा रहे हो। 1 साल से आप मेहनत कर रहे हैं पर आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको यहां पे मूव करके यहां पे लाना है। अगर आप सिंपल ढंग से देखो, लॉ ऑफ एनर्जी अगर इसमें लगाइए तो आप इसको कब मूव कर पाएंगे, आप इस स्टोन को तब मूव कर पाएंगे जब यहां पे फोर्स जो आप लगा रहे हो ये इसके यहां पे वेट से ज्यादा होगा। यू विल बी जब यहां देखो, जैसे कि अभी वो मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जस्ट सी, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, मैंने हल्का हल्का लगाया। आप यहाँ पे भले ही बहुत ज्यादा वेट लगा रहे हो, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसके वेट से अभी भी ये कम है। जब आप यहाँ पे इतना वेट लगा दोगे कि इसके वेट से ये वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तब ये मूव करेगा। और अब ऐसे तो नहीं हो रहा है, मगर मानो चलो ऐसे करके मूव कर गया यहाँ पे, तब हमने यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगाई है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको एनर्जी बैलेंस करना है। अभी जब आप मेहनत कर रहे हो तो एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है आपकी, आप एनर्जी डेट में है। लॉ ऑफ कर्मा लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले लॉ ऑफ कर्मा लगता है, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर लॉ ऑफ लव लगता है। तो कोई भी चीज आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में नहीं ला सकते जब तक कि आप लॉ ऑफ कर्मा के अंदर वो नहीं आता है। आप लॉ ऑफ कर्मा लगेगा, आपके पास उतनी एनर्जी रहेगी, कोई एनर्जी डेट नहीं रहेगा आपका, तभी आप उसको एक्सेस, जब एनर्जी डेट नहीं है तो एनर्जी आउटफ्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी लीक नहीं हो रहा है। तो जितना भी आप मेहनत करेंगे वो मेहनत इसको आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आप जितना भी मेहनत कर रहे हो लेकिन बीच से एनर्जी डेट है आपका, वो आउटफ्लो हो जा रहा है। एक पाइप से आपकी सारी मेहनत नीचे चल जा रही है क्योंकि पिछले जन्म का कर्मा आपको बैलेंस करना है। एंड यूनिवर्स इज टोटली बैलेंस्ड, यूनिवर्स में पूरा बैलेंस है, ओके।
यूनिवर्स में कुछ तरह की चोरी नहीं होती, किसी तरह का फ्री भी नहीं रहता है. यू हैव टू गिव एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. एनर्जी कैन ओनली ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अनदर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो यहाँ पे जो भी एनर्जी लगा रही हो, डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? डिवाइन टाइमिंग वही होता है जब आपने सारे कर्मास अपने पे कर दिए हैं, तब आपकी एनर्जी उतनी हो गई है जहां पे आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे. यानी कि इसकी एनर्जी इसके बराबर है, तभी आप इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे. जब तक आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी कि इसको चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, इन शॉर्ट आपका एनर्जी डेट है. आपने एनर्जी डेट लिया है पिछले जन्म में या पहले भी. आपने किसी से चीज ली, आपने उसको वापस नहीं की, तो वो एनर्जी डेट आपके आकाशिक रिकॉर्ड में एक टिकट रेज हो जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. माने कि जो भी चीज किसी से लो उसको थैंक्स बोलो. आपने उतना तो फिर भी नहीं दिया, जितना भी लिया है उतना तो आप हम लोग सबको ही नहीं दे सकते हैं. आई मीन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट द लीस्ट वी कैन डू इज दैट से थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प. जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स की. आई वैल्यू व्हाट आई हैव गिवन, इवन दो आई कैन नॉट रीपे टोटली, बट थैंक यू सो मच. और इसीलिए ग्रैटिट्यूड का इतना इंपॉर्टेंस होता है. कहीं से कुछ भी चीज लीजिए, या तो उसको कभी फ्री तो लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक फ्री इन द यूनिवर्स गाइज. जो भी चीज फ्री होना चाहिए यूनिवर्स में ना, वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. जो हमारे महाविष्णु हैं उन्होंने बना दिया है कि यू नो द सन गॉड गिविंग हिज फ्री एनर्जी, फ्री की ऊर्जा देते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट थिंक ऑफ पेइंग फॉर दैट. वर्षा, पानी, क्रॉप्स, धूप, छांव, ये पानी, ये सारी चीजें, शीतलता, ये सारी चीजें हमें फ्री में मिली हुई हैं. इसका हम मनी, पैसा नहीं दे सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको थैंक्स बोल सकते हैं. हम नेचर को थैंक्स बोल सकते हैं. हम पार ब्रह्म परमेश्वर को थैंक्स बोल सकते हैं. हम महाविष्णु को थैंक्स बोलते हैं. जिस नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है उसको हम थैंक्स बोल सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम अननेसेसरीली कर्मास क्रिएट नहीं कर रहे हैं. हम अननेसेसरीली एनर्जी डेट नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है, अनजाने में, क्योंकि हमें एनर्जी के बारे में, कर्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है. हम अनजाने में ही बहुत सारे कर्मास क्रिएट कर रहे हैं. कर्मास क्रिएट करना क्या हुआ? टिकट रेज करना हुआ. जिस चीज के लिए हमने एनर्जी नहीं दी है वापस, वो टिकट रेज हो गया. वो आपको आगे चल के कल या परसों या 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, नेक्स्ट जन्म में आपको वो एनर्जी वापस करनी है उस इंसान को. एंड दैट इज हाउ द लॉ एंड द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन कीप ऑन गोइंग. तो वो सारी चीजें हैं. आपने शायद महादेव सीरियल अगर देखा होगा, क्योंकि ये चीज, क्योंकि आई वॉज रीडिंग अ लॉट अबाउट कर्मा दोज डेज, एंड आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग महादेव लास्ट ईयर, एंड आई वॉच्ड दिस. महादेव बोलते हैं सती मैया को कि शी वॉज वेरी एंग्री कि महादेव को उनके पिताजी ने, जो दक्ष प्रजापति थे, वो शादी में कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और उसमें उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया था. और ये बात सती मैया को अच्छी नहीं लगी थी और वो गई थी. और जाने के लिए महादेव उनको कितना रोक रहे थे, बिकॉज ही इज यू नो ही कैन सी द फ्यूचर. उनको पता था कि क्या होने वाला, लेकिन ही स्टिल कैन नॉट इंटरफेयर इन द लॉज ऑफ यूनिवर्स. तो वो उनको रोक रहे थे, जितना वो रोक सकते हैं वो भरसक कोशिश कर रहे थे उनको रोकने का. और बेसिकली वो क्या बोला था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट ही सेड डोंट गो सती, बिकॉज अननेसेसरली तुम वहां पे जाओगी, तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम फिर जो भी करने वाली हो, बिकॉज ही वॉज सीइंग एवरीथिंग. वो बोले कि तुम काल चक्र में फंस जाओगी. तो काल चक्र में जब सती मैया फंस सकती हैं, तो तुम्हें, जबकि वो कितनी इवॉल्व हैं, आदि शक्ति हैं, तो हम और आप तो चीज ही क्या है? हम वी आर क्रिएटिंग कर्मास एट द ड्रॉप ऑफ आवर हैंड. किसी को गाली दे दिया, मतलब कि ईगो में ही है, मेरी मर्जी. किसी के इस पे चले गए, उसको गाली दे दिया, उस पे स्मॉल टॉक कर दिया, उस पे ताली बजा के हंस दिए, मतलब कि कुछ मतलब ही नहीं है. हर चीज आपको चुकाना पड़ेगा आपके लाइफ में. सो बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर डूइंग एंड इंडल्जिंग इन ऑल दीज लो वाइब्रेशनल थिंग्स, आई वुड से. And be very careful, because at the end of the day you are using your energy to do low vibrational work, and you energy always keeps on flowing. What goes around comes around. So don't unnecessarily create unnecessary karmas, क्योंकि जाने अनजाने में हम
मूर्ख खलकामी लोग ऑलरेडी कर्मास बहुत क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि तुम सुम्बुल को हेट करती हो, सुम्बुल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ना तो मैं उसे देखती हूँ ना तो मैं उसे जानती हूँ, मैं उसको हिट करके अननेसेसरीली अपने कर्मास क्यों क्रिएट करूंगी, उससे क्या ही है मुझे। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड इफ जस्ट बिकॉज यू आर अटैच टू हर यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन थ्रू अ वेरी रोज colored tinted glasses. I have no business, I have no time, I have no interest, I have no attachment to hate anybody. I am sitting here doing tarot guidance, healing people, doing therapies because I certainly would have worked on myself to heal my wounds. And there was a time in my life where I used to hate goddamn everybody, and now there is a time in my life where I don't really hate anybody. Because I see that everybody came in my life to teach a lesson and I thank them for teaching my lessons. I don't want to unnecessarily create karma. क्योंकि कर्मा क्या है? कर्मा is basically you are tied to that person. आप टाइड किस तरह से हो सकते हो? आप किसी चीज से किस तरह से जुड़े रह सकते हो? या तो आप पॉजिटिव वाइब से जुड़े रह सकते हो, लव से जुड़े रह सकते हो, या तो आप नेगेटिव वाइब से जुड़े रह सकते हैं, किसी से हेट्रेड से जुड़े रह सकते हैं, जेलसी से जुड़े रह सकते हो, ईगो बेस्ड एनर्जी से जुड़े रह सकते हो। एंड ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट एनर्जी लिंकेजेस दैट टू डिफरेंट पीपल। एनर्जी वेब्स है जिसमें कहीं से ज्यादा एनर्जी आ रही है, कम एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। So there is no point. We all actually Torkam Sardian है जो कि he writes a lot about these things, okay, and he actually said that कि कर्मा का जो how karma works and operates, this should be actually taught in schools and universities, that people don't start creating karma for at a drop of a hat. हमको वो पसंद नहीं है, चल हट भाग, गाली दे दिया, कुछ भी बोल दिया, मजे ले रहे हैं। आजकल लोल चलता है, लोल करते हैं। बेसिकली इट्स ऑल फ्लैटरिंग एंड ईगो बेस्ड स्टफ्स। अगर ईगो इज अ वेरी पोटेंट एनर्जी, अगेन ईगो इज अ वेरी पोटेंट एनर्जी। पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर ईगो फॉर सिली थिंग्स। यूज योर ईगो टू मेक योर सेल्फ समथिंग। So that is what it is. Very potent energy karma. Very potent energy ego. Unnecessarily आप किसी को हेट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, जेलसी में इंडल्ज हो रहे हैं, ईगो बेस्ड एनर्जीज में इंडल्ज हो रहे हैं, जहां पे जरूरत नहीं है आपको अननेसेसरी जजमेंट करने का, आप जजमेंट कर रहे हो, तो ये सब कर्माज ही क्रिएट हो रहा है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, योर स्पिरिट गाइज थिंक कि ओके फाइन, सो यू आर जजिंग समबडी, you need to learn the lesson of judgment. So unnecessarily you will go through your experiences where you will be judged, and what will happen, you will have to practice non-judgment for people who are judging you, and it is a difficult thing, right? It's not easy. We see some people going through very difficult times. तो वो चीजें हैं। तो ये सारी चीज बात हो गई। 27 minutes ऑलरेडी हो गया है, तो I will just conclude this video here. I'll just continue. थोड़ा सा और बात, वो वाली बात इधर उधर हो गई थी तो मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कोई मेरे पास आ रहा है, तो यही वाला बात हम कर रहे थे ना, आई डिड गॉट डेविएटेड अदर प्लेसेस। कोई आ रहा है, उस जॉब पे मेहनत कर रहा है, बट और उसका तो मैं यही बेसिकली बता रही थी कि उसका क्या गाइडेंस आएगा ना, वो मिलियन ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके हिसाब से उसका जो भी गाइडेंस आया। गाइडेंस चलिए मान लेते एक सिंपल सा गाइडेंस है कि यस उसको जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट एनर्जी, यानी कि उसकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, वो अपने काम पे मेहनत कर रहा है, हिम्मत नहीं हार रहा है, इवन दो सिचुएशन इज वेरी बैड, वो हिम्मत नहीं हार रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अपने कर्मा काट रहा है, राइट? उसने कभी भी कुछ हुआ होगा, वो बैलेंस कर रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, मेहनत करते जा रहा है, तो उसको पेशेंस की एनर्जी जा रही है, उसका सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब उसको गाइडेंस आ गया कि हाँ उसको जॉब मिल जाएगा। अब इस बेसिस पे उसको तो लगा कि अब तो जॉब मिल जाएगा, उसने मेहनत करना छोड़ दिया, तो उसने अपनी एनर्जी बेसिकली चेंज कर ली। ठीक है, उसने बेसिकली अपनी एनर्जी चेंज कर ली। अब जब आप एनर्जी चेंज करते हैं तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। इट्स नॉट लाइक कि हाँ ठीक है किसी ने बोल दिया कि आपको मिलेगा। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, ओके, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी। सो एवरी डिविनेशन, एवरी टूल टू हेल्प यू हैज इट्स ओन वेज ऑफ हेल्पिंग यू। शायद एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करे तो होता ही है शायद, मगर
with tarot, yes, it happens most of the time, it happens, but अगर कोई major change in energy आ गया, then the energy can change, the results can change, and that is the beauty of tarot. Just imagine कि आप मेरे पास आते हो कोई challenge के साथ और आपका फ्यूचर दिखाता है कि चीज़ें और चैलेंजिंग हो रही हैं, लेकिन आपको टैरो ये भी बताता है कि इस एनर्जी के कारण आपकी चीज़ें चैलेंजिंग हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे वर्क करें, यानी कि रिजल्ट से आप अटैचमेंट मत करो। सुंबुल का जो केस है उसके करियर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। उसको बोला गया है कि वैसे तो जितना वो मेहनत कर रही है और जैसी उसकी एनर्जी है, जैसे वो हर अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रही है, उस हिसाब से इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, उसको बहुत ही मीडियोकर रिजल्ट मिल रहा है विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड इवन 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही एवरेज रिजल्ट मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हमें इतना एवरेज रिजल्ट टैरो दिखा रहा है? तो मान लो कि सुंबुल इस प्रॉब्लम्स के साथ आए कि मैं मेहनत तो कर रही हूं पर लग रहा है जैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। टैरो ने दिखाया यस, रिजल्ट बहुत ही एवरेज मिल रहा है, बट एरिया ऑफ वर्क भी दिखाया कि तुम अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। दिस इज क्रिएटिंग दिस हैज चांसेस ऑफ क्रिएटिंग stuck energy in your life, as in whatever work that you are doing, very hard work that you are putting in, क्योंकि attachment of result है, ये सारा hard work जो जा रहा है attachment of result में फंस जाएगा। यानी कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हो ना, अच्छे से flow करके आपको result नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो ना? एक खिली खिली सी एनर्जी होनी चाहिए, दबी दबी सी एनर्जी नहीं होनी चाहिए for things to flow and reach its destination. The moment you add any kind of temptation, addiction, blockage, एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है। तो इवन दो सुंबुल इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट है, उसका फियर ऑफ द पास्ट भी है, पास्ट में उसकी कुछ चीजें वर्क नहीं हुई थी, वो फियर भी है, वो भी उसको डरा रही है, एनर्जी को उसकी ब्लॉक कर रही है। प्लस और चीज क्या हो रहा है उसके कारण वो और मेहनत कर रही है, लेकिन हमेशा शी इज लाइक अटैच टू रिजल्ट्स। इसीलिए क्या अगेन भगवद गीता का लेसन आ जाता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म फल देना मेरा काम है, जैसे कृष्णा ने बोला है। तो वही चीज होता है, ये कुछ सोच के ही कृष्णा ने बोला होगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जाओ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच तुम पैसा दे दो जितना भी है, बाद में वो यही बोलते हैं कि बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। So the law of attraction coaches are not telling you anything different than what Krishna told you, but they are just kind of hiding couple of things कि कर्मा की बात नहीं करते हैं। You can manifest only that which is in your field of karma. Plus you can manifest things by flowing with it, by आप निष्कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, तब हो जाएगा। तो ये चीज मैं बता रही थी कि yes, that person can change that. सुंबुल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि yes, अगर सुंबुल को बहुत इतने मेहनत करने के बाद भी सुंबुल का रिजल्ट थोड़ा एवरेज दिखा रहा है, लेकिन अगर वो रिजल्ट से अटैच करके, यानी कि होगा सक्सेस होगा फेलियर होगा, सक्सेस होगा फेलियर होगा, सोचो उसको करने में भी कितना उसका टाइम और एनर्जी जा रहा होगा, टेंशन भी होता होगा, स्ट्रेस भी होता होगा। अगर वो ये सारी चीजें छोड़ करके बस बोले कि मुझे इंजॉय करना है, मुझे मेहनत करना है एंड आई विल नॉट केयर कि क्या रिजल्ट होता है, तो उसका वो जो खिला खिलापन था ना, जैसे कि पहले चीजें हिट होती थी, वो वाली एनर्जी में चली जाएगी और यू विल सी कि थिंग्स विल हैपन। तो वहां पे मिरेकल वाला कार्ड भी है उसका, लेकिन वहां पे वही लेसन उसको लर्न करना है, अटैचमेंट टू रिजल्ट हटाना है। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। जैसे कि मनीषा और अभिषेक की एनर्जी क्या है अभी, कि मनीषा डजंट वांट टू वर्क विद अभिषेक। क्यों? क्योंकि उसको हर्ट हुआ है, उसकी फीलिंग्स थी अभिषेक के लिए, वो रेसिप्रोकेट उसी मैटर में नहीं हुई जिस स्टाइल में उसने किया था, जैसे कि रोमांटिक वे में रेसिप्रोकेट नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है उसकी फीलिंग्स अगर हर्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू माई टैरो, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू माई टैरो, और उसी के हिसाब से मैं बात भी कर सकती हूँ। तो उसका है कि शी डजंट वांट्स टू गेट हर्ट एनी फर्दर एंड यस शी वांट्स टू फोकस। उसने अपनी फीलिंग्स को वहीं पे स्टॉप किया, अब वो अपने करियर पे फोकस्ड है और वो नहीं चाहती है कि आगे में भी काम करे, फिर से ये फीलिंग्स डेवलप हो जाए। तो शी डजंट वांट्स टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। सो टू मी शी लुक्स वेरी सॉर्टेड एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट। मगर दिस इज हर प्रेजेंट एनर्जी। अब ये देखिए एनर्जी आगे में जाके बदल भी सकती है। अब ये कैसे बदल सकती है? अभी तो उसका है कि मैं इतनी हर्ट हूं कि मुझे इन सारी चीजों में पड़ना नहीं है, मेरा करियर सही चल रहा है, मुझे इस पे फोकस करना है। अब ये देखो आगे में 4 महीने में एनर्जी या फिर आगे चल के कैसी एनर्जी चेंज होगी।
एनर्जी चेंज इसलिए हो सकती है क्योंकि वी ऑल आर चेंजिंग, नथिंग इज कांस्टेंट बट चेंज, वी आर ऑल चेंजिंग, वी आर ऑल ग्रोइंग इन मेच्योरिटी। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और समझदार बन रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज भी दिन पर दिन चेंज होती है। आज मेरी जो प्रायोरिटी है वो 3 साल पहले वो प्रायोरिटी नहीं थी, है ना। तो मनीषा की भी या जो भी हैं उनकी प्रायोरिटी जो आज है, आज उसका प्रायोरिटी क्या है कि मुझे अपना हर्ट नहीं होना है, मुझे अपने करियर में फोकस करना है। तब मैं उसके लिए उसके आई मीन अकॉर्डिंग टू माई एनर्जी शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद, शी डजंट वांट्स टू वर्क विद हिम बिकॉज शी डजंट वांट्स टू गेट हर्ट। दिस इज द राइट वे टू से इट। तो पर मान लीजिए कि आगे चल के वो मैच्योर हो जाए, मान लीजिए कि उनको कुछ इस तरह का, मान लो कि उसको कोई और ही बंदा मिल जाए जो कि बहुत ही ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहा है एंड शी इज रियली हैप्पी, तो उसके सारे गिले शिकवे जो थे अभिषेक से वो मिल जाए, घुल जाएगा। तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके साथ काम करने में, क्योंकि उसको और भी कुछ अच्छा मिल गया है। कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, तब वो प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। और ऐसा भी होता है। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि प्ले आउट हो सकते हैं एनर्जी फील्ड में, जो कि एनर्जी चेंज होने के कारण चेंजेस हो सकते हैं। अब अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि आपने कितने सारे लोगों में या फैमिलीज में भी देखा होगा कि कभी कुछ दुश्मनी हो जाती, या फिर आपके ही किसी बचपन के फ्रेंड से ऐसी कुछ दुश्मनी हो गई एंड यू आर लाइक आप इस तरह के बचकाने डिसीजंस ले लेते हो कि मैं तो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूं। फैमिलीज में अक्सर ऐसा होता है, फैमिली राइवलरीज में मैं उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। स्पेशली अगर कोई बच्चे शादी करके चले गए तो माँ बाप अक्सर गुस्सा हो जाते हैं एंड दे आर लाइक मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि हाँ सच में शक्ल नहीं देखते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं तभी भी वो फॉरगिव नहीं कर पाते, यानी कि उनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई है। उनकी एनर्जी जो उस समय थी जितनी बड़ी, जितनी वो ईगो बेस्ड हो गई थी या फिर बहुत जजमेंटल हो गई थी, बहुत कंट्रोलिंग हो गई थी कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम कैसे शादी कर सकते हो, आई वाज सो हर्ट विद योर डिसीजन। वो अभी भी अगर बहुत सालों बाद भी सेम रहती है तो वो उसका शक्ल तभी भी नहीं देखेंगे, तब उनका गाइडेंस वही होगा कि नो आई डोंट वांट टू सी। लेकिन इन दिस ड्यूरेशन बच्चे ने शादी कर ली, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने ये बोल दिया कि हम उसका शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, आप भी नाना नानी बन जाते हो, दादा दादी बन जाते हो, इमोशंस चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, आप भी ग्रो कर लिए हो, मिस कर लिए हो, याद कर लिए हो कि कितना जो भी शादी किया ठीक है, अभी खुश है या जो भी है, तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप भी ग्रो कर रहे हैं। तो जो इंसान उस समय उसने टैरो रीडिंग ली होगी तो आया होगा कि यस यू विल नॉट वॉच, यू विल नॉट सी दैट पर्सन। लेकिन जब ग्रोथ हुआ, एनर्जी चेंज हुई, लेसन्स लर्न हुए, आप ग्रो कर गए, तब क्या हुआ, आज आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि यू वांट टू मीट दैट। अगर आज कोई टैरो रीडिंग करेगा तो यू आर लाइक यस वो तो बचकानी बात थी, किसी का चेहरा नहीं देखना। तो इस तरह से टैरो बेस्ड ऑन एनर्जी है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी के बेसिस पे आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। और सही मायने में तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज मान लीजिए कि कोई चैलेंजिंग एनर्जी आपको दिखा रही है, अब वो चैलेंजिंग, आप टैरो गाइडेंस के लिए आ गए हो, अब चैलेंजिंग एनर्जी दिखाया जा रहा है, अब वो चैलेंजिंग एनर्जी जस्ट इमेजिन इफ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू चेंज दैट चैलेंजिंग एनर्जी, तो टैरो गाइडेंस लेके भी क्या फायदा है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो स्टोन रिटन इन स्टोन हो गया है। तो देख रहे हो कि कितना प्रॉब्लम है। तो टैरो का ब्यूटी ही यही है कि इट टेक्स यू थ्रू योर जर्नी, एक्सप्लेन्स एवरी अप्स एंड डाउन्स, द डार्क्स एंड द शैडो। आपका लेसन क्या है यहाँ पे लर्न करिए। और जब आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, एनर्जी चेंज का मतलब यही होता है कि आप अपने सोल लेसन पे काम करते हैं, अपने सोल को ईगो से फ्री करते हैं, राइज इन कॉन्शियसनेस करते हैं। यही सब तो सोल लेसन के लिए बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आप पृथ्वी पे आए हो ना, आप ईगो गेम खेलने तो नहीं आए हो। तो बेसिकली जो भी लेसन यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको टैरो में, चैलेंज का मतलब ही होता है कि देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न बेबीज, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्टॉप सीइंग थिंग्स एंड चैलेंजेस एज नेगेटिव. I can understand it feels scary, but at the end of the day, this is the challenge that you sat with your spirit guides and wrote it and accepted in as a soul lesson. सोल प्लान का आपका पार्ट है, आपने साइन किया है ये सोल प्लान अपने सोल के ग्रोथ के लिए। वो चैलेंज जो आपके लाइफ में दिख रहा है टैरो से, वो आपने चूज किया है टू लर्न समथिंग। सुम्बुल ने भी ये चैलेंज अपने लिए लर्न किया है, लिया है to learn something for her soul to rise and grow through this, so that ultimately
सोल राइजेस इन कॉन्शियसनेस, और हम सब यही तो चाहते हैं ना कि हम अपने कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े. वी बिकम मोर mature souls and we ascend and finally we go to what? Golok Dham. तो सोल अपना बेस्ट कर रहा है, सुम्बुल अपना बेस्ट कर रही है इस द्वंद को फाइट करने में कि उसको विश करे कि उसको ना विश करे, फादर के साथ रहे या फिर फ्रेंड के साथ रहे जिसने उसका साथ दिया है. लेट हर डिसाइड, इट इज हर गेम. वो सोल लेसन्स लर्न कर रही है. हमको इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और चीजें चेंज होती हैं. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सोल विल लर्न एंड चेंज इट्स एनर्जी थ्रू ग्रोइंग through it, not just going through the problem. We don't have to go through the problem, we have to grow through the problem. GROW, grow through the problem. जब आप ग्रो थ्रू द प्रॉब्लम करते हैं तो आप अपने शैडो को हील कर लेते हैं, आप अपनी एनर्जीज को हील कर लेते हैं क्योंकि आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लीग. वाओ. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. सोल प्लान होता है, कर्मा होता है, एनर्जी बैलेंस होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है, और भी जाने कितनी सारी चीजें होती होंगी जो मुझे पता भी नहीं है. जो थोड़ा बहुत पता है थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की हूं. सो ultimately the thing is that there is no point judging to conclusion. Everybody is doing the best that they can, and the best thing we can give anybody is a little understanding, because there is a selfish reason to it that if we are judging we are unnecessarily creating karmas for us. तो जब हमारा खुद का नुकसान हो रहा है स्लो टॉक में, क्रिटिसिज्म में, ईगो बेस्ड गेम में, जेलसी में, तो व्हाई आर वी गोइंग टू गेट इनटू दिस जब हमारा नुकसान हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई टॉर्कम शर्डियान ने बोला है कि हर लोगों को कर्मा का लेसन पढ़ाना चाहिए सो दैट पीपल डोंट स्टार्ट क्रिएटिंग कर्मा टिकट्स एट द ड्रॉप ऑफ द हैंड. है ना. तो वो सारा ज्ञान हो गया 40 मिनट्स. नाउ व्हाट आई विल डू इज चलिए देख लेते हैं. द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, आई विल टेक अ लॉट ऑफ मिनी वीडियोस, छोटा छोटा वीडियोस मैं बनाऊंगी. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज आई पॉसिबली कैन. नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी सुम्बुल का. व्हाट यू विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट वी नीड टू नो अबाउट सुम्बुल विशिंग फहमान ऑन हिज बर्थडे. एक दूसरा रिक्वेस्ट जो सुम्बुल फहमान का है वो ये है कि a lot of few people fans want to know if they will get united. ठीक है. तो क्योंकि हम लास्ट क्वार्टर ऑफ द रीडिंग्स मैंने काफी किया है, तो लेट्स सी द लास्ट 4 months ऑफ दिस ईयर व्हाट गेट्स फॉर दिस कपल फॉर यूनियन पार्ट ऑफ इट. ठीक है. और ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए. 9 planets आर इन रेट्रोग्रेड विच मीन्स, एंड दैट टू ऑल्सो आई थिंक इन वर्गो. तो काफी इमोशंस हाई हैं, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस का भी ध्यान रखिएगा. और भी बाकी सारी छोटी छोटी रीडिंग्स करने की कोशिश करूंगी मैं एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ माई टाइम गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ओके, स्टे पॉजिटिव, स्टे इन हाई वाइब्रेशन, एंड द बेस्ट वे टू स्टे इन हाई वाइब्रेशन इज टू स्टॉप जजिंग and mind your own business and don't judge, and say thank you for everything that universe is sending your way. It's a simple way to tell universe that you are liking this. Every time आप thank you बोलते हो ना, every time you say thank you, universe listens to you. Universe is always listening to what we are saying and all our gestures, all our energy. And every time we say thank you, we are sending a message to universe, I like this, bring this more for me, bring this more in my energy field. और आपको वो सारी चीजें ज्यादा आपके एनर्जी फील्ड में आने लगती है. वो चीज को वापस रिपेल करेगी आपकी लो वाइब्रेशनल चीजें. तो बेस्ट है मिनिमाइज द लो वाइब्रेशन फ्रॉम योर फील्ड, इंक्रीज द पॉजिटिव वाइब्रेशन, से थैंक यू एज मच एज यू कैन फ्रॉम योर हार्ट, because a lot of people are not blessed to as you think. There are a lot of people lot more in pain. You have no idea. I work with a lot of people, they have some genuine problems. And जब मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोगों का प्रॉब्लम बस यही है, सुम्बुल फहमान से बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हंसू की रोऊं. Because there are people who are going through really tough situations in life, guys. Really tough situations in life. तो जब इतना टफ सिचुएशन है तो हम उसकी तरफ आंख बंद करके ये नहीं प्रिटेंड कर सकते हैं कि सुम्बुल फहमान बात नहीं कर रहे हैं. दिस हैज टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो
it is only coming because you are too attached to it and you are choosing to close your eyes to all the 10 million problems that genuinely exist in the world. But I cannot close my eyes, right? Because I am working with 10 people, knowing, seeing things how it is. So this is what it is. So thank you so much for watching, and next video is going to be, let's see what happens. Will Sumbul wish Farman? What is it that is happening with her? Let's check that out in the next video. See you there.